morning to all of you. Today we are going to learn something about thoraco-abdominal diaphragm. So first thing, what is diaphragm? Diaphragm is basically, it is a partition. What is the meaning of diaphragm? It is a partition. So partition may be between the thoracic cavity and abdominal cavity. Okay, so it may be between thoracic cavity ऊपर है and abdominal cavity. So that is known as thoraco-abdominal diaphragm. It is basically a partition. Other diaphragm which we will see later on in next lectures will be pelvic diaphragm. So what will be the pelvic diaphragm? वो क्या होगा pelvic diaphragm? Which will separate the pelvic cavity from the perineum. ये आगे जाके अपन पढ़ेंगे. Okay? So second will be the pelvic diaphragm which separate the pelvic cavity from the perineum. Perineum से separate करेगा. The third diaphragm which we will see still later on will be urogenital diaphragm. UG diaphragm. Urogenital. So urogenital diaphragm again it will be a partition. ऊपर perineum का deep perineal pouch. UG diaphragm is deep perineal pouch and below this will be the superficial perineal pouch. So there will be three diaphragms in the abdomen and pelvis. दोनों में मिला के कितने होने वाले हैं? 3 होने वाले हैं. First one is thoraco-abdominal which is between thorax and abdomen. Another जो हम देखने वाले हैं that is pelvic diaphragm between pelvic cavity and नीचे perineum आने वाला है. Then another diaphragm will be the urogenital diaphragm. Urogenital diaphragm is going to separate the deep perineal pouch and superficial perineal pouch. This UG diaphragm, it has got a fascia, superior layer and inferior layer. Inferior layer of UG diaphragm is known as perineal membrane. So perineal membrane is going to separate the deep perineal pouch and superficial perineal pouch. So UG diaphragm is basically deep perineal pouch. Okay? So these are the three diaphragms. Thoraco-abdominal, pelvic and UG diaphragm. इसके अलावा और कौन से अपन ने देखे हैं? Oral diaphragm. Oral diaphragm is the mylohyoid muscle, that is oral diaphragm. Another which you have seen in the pituitary में पढ़ा होगा आपने, diaphragma sali. So total आज कितने बताए मैंने आपको? One is thoraco-abdominal, another is pelvic, then UG diaphragm, then oral diaphragm, and then diaphragma sali. Okay? So today's topic is basically concentrated on the thoraco-abdominal diaphragm. So what is for thoraco-abdominal diaphragm? It is the main muscle of quiet respiration. Okay? Which separates it, as I have already told you, thoracic cavity and abdominal cavity. So it is the muscle of quiet, not forceful, quiet respiration. It develops in the region of the neck. Neck के region में develop होता है. Neck के region में cervical somaite, third, fourth and fifth. 3 cervical somaite. Okay? Third, fourth and fifth. Embryologically. So it carries the nerve, same nerve root value, phrenic nerve. Diaphragm is developing, कहाँ से आया? Cervical. So the nerve is also a loyal nerve because उसने अपना loyalty जो है वो continue किया है. So root value of the phrenic nerve is also C3, 4 and 5. Okay? So what is the nerve? Nerve is the phrenic nerve. Another thing which is important, during inspiration, in the respiration there are 2 things. One is inspiration, another is expiration. So in the inspiration, when the diaphragm goes down, the opening in the diaphragm, that is IVC, inferior vena cava, it enlarges. ये आगे चल के बताऊंगी अभी मैं.
and it helps in the venous return. So these are the important points. Then it is a dome-shaped muscle. This muscle is basically a dome-shaped muscle. This dome, you can see, this is the right dome, this is the left dome. And in between, ये green color जो है, that is the central tendon. So you can see the diaphragm, it is having a right dome, it is having a left dome. ये इसका अपन ने anteroposterior देखा है, okay? And central tendon, which is aponeurotic, okay? Here you can see, this is the AP view. In the lateral view, you can see this is the central tendon and this is the one dome. This is the view from the above. So you can see red color दिख रहा है आपको और green दिख रहा है. So this red color, that is the muscular part of the diaphragm. Muscles का part है. And central tendon is the aponeurotic. So diaphragm, thoracoabdominal diaphragm is musculo-aponeurotic. Red is muscle, green is aponeurosis. So it is musculo-aponeurotic. From this diagram you can see there is one opening. ये यहाँ एक opening आपको दिखाई दे रही है. There is another opening. ये बाद में भी देखने वाले हैं. This opening is the esophageal opening. Okay? So from here you can see IVC opening is in the aponeurotic part and esophageal opening is in the muscular part. Okay? एक और ओपनिंग है जो बाद में मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पीछे आएगी एओर्टा की. Then this right dome of diaphragm, इसके जस्ट नीचे क्या आने वाला है, liver. And right dome is a little bit higher, ऊंचा होता है. And left dome is a little bit lower in position. So now from where these muscles arises, that will be the origin, and central tendon is the insertion. So from where it is arises, एक आगे का पार्ट है, so obviously sternal part आएगा, then costal part पढ़ेंगे अपन, फिर यहाँ पे lumbosacral arches आएंगे जिन्हें arcuate ligament भी अपन बोलने वाले हैं. Okay? So it is a dome shaped muscle. You have seen this is a dome. This is the dome shaped muscle. Now the origin, it has got a sternal part, costal part and lumbar part. It has got three parts, okay? So sternal part ये आगे से आएगा, then costal part side में से है और पीछे से इसका जो आ रहा है that is lumbar part, okay? So sternal part arises from the xiphoid process. Xiphoid process क्या है? आपका जो sternum है उसका जो lower part है xiphoid process, so it arises from the back of the xiphoid process by two fleshy slips. Another is the costal part. Costal मतलब cartilage से निकलने वाला है. So lower six costal cartilages से निकलता है, उसके inner surface से and adjoining part of the ribs. Here it interdigitate with a abdominal muscle that is transversus abdominis. What is this lumbar part? I will show you. This is the diaphragm. Okay? So you can see ये muscular part है जो sternum से निकला है, ये lumbocostal वाला है, and this one you can see this is the arcuate ligament, that is lumbosacral part, okay, lumbocostal part. So this is the medial arcuate ligament, this is the lateral arcuate ligament. Which muscle it is going to, on which it will be formed? So this muscle is known as the psoas major muscle and this muscle is known as the quadratus lumborum. ये जो दो muscle आपको दिख रही हैं, medial one, in the middle part is the vertebra. So this is the vertebra. Vertebra के just medially you can see this muscle, this is the psoas major muscle and this is the quadratus lumborum muscle. So on the psoas major muscle, it is covered by a fascia. Similarly, quadratus lumborum is also covered by a fascia. तो दोनों fascia के ऊपर आप देखो, you can see this arc is known as the arcuate, medial arcuate ligament, जो कि psoas major muscle के fascia के ऊपर आपको दिख रही है. Another one is on the quadratus lumborum. So this arc is known as the lateral arcuate ligament. So medial arcuate and lateral arcuate ligament, these are the ligament from where
the lumbar part of the diaphragm arises. This is the diaphragm muscle. ये पूरा diaphragm का muscle है. So it arises from, we will revise, xiphoid process के पीछे से निकला है. फिर costal part है जो कि costal cartilages, lower 6 costal cartilages के inner surface से निकला है ये वाला part और यहाँ पे ये वाला part. Okay. And another part which arises from the fascia covering the muscles of the posterior abdominal wall. एक muscle है psoas major, another one is the quadratus lumborum. So this arc which is formed on the psoas major muscle, this is medial arcuate ligament, and quadratus lumborum के ऊपर जो है that is the lateral arcuate ligament. बीच में ये vertebra आपको दिख रहा है. ये जो white part है, this is the central tendon, जो अभी last diagram में हमें green color से दिख रहा था. So this is the central tendon. So this is the aponeurotic part. So all muscles arises from xiphoid से निकला, costal, again posterior abdominal wall. All muscles are going upward and inward. Muscles कैसे जा रहे हैं? ऊपर और बीच में. So all muscles are going to be attached here in the form of a aponeurosis. So this thing is known as the central tendon. Central tendon. Again you can see from this diagram, ये जो red color का है ये पूरा का पूरा muscular part है. This all is the muscular part. So all muscles, xiphoid से निकला, पीछे गया, ऊपर गया, costal cartilage से, it is again going upward and inward. Lumbar part जो है, it is again going upward and inward. So it is a dome shape and all of them are inserted into the central tendon. Central tendon is not exactly in the center of diaphragm. यहाँ पे देखो center आएगा. So central tendon is a little bit anterior. थोड़ा आगे होता है. It is a little bit anterior. And as I have already told you, this aponeurotic part, it is having an opening that is IVC, and muscular part में जो opening है, that is the esophageal opening. So again you can revise sternal part, xiphoid process, costal part, lower 6 costal cartilages, and here it interdigitate with transversus abdominis muscle. And lumbar part कहाँ से निकला है? Medial and lateral lumbocostal arches, and from lumbar vertebra by right and left crus. This I will show you again. This is the diaphragm, you can see. This is costal part, ये costal cartilages से निकला है. Here you can see in the middle is the vertebra. Which vertebra? Lumbar vertebra. This one is the right crus, ये right side पर है. This is right crus and this is the left crus. From this diagram you can see this is first lumbar vertebra, this is second lumbar vertebra, and this is the third lumbar vertebra. So right crus is bigger one, it is stronger one, it arises from third lumbar vertebra, second lumbar vertebra and first lumbar vertebra. तीन से निकला है ये. So it arises from upper 3 lumbar vertebra. But the right crus, you can see it is a narrower one. इसके comparison में कैसा है ये? Right, in the comparison of right, it is a narrower one. And it arises only from the upper 2 lumbar vertebra. केवल दो से निकलता है. So first lumbar vertebra and second से. So these are the 2 crus. So this diaphragm, it arises from the 2 crus. It arises from the lumbocostal arches. It has got a costal part. It has got a sternal part. This is the diagram in which you can see the diaphragm from below. It is a dome shape. In the center is the central tendon. This is right dome and this is left dome. ये आगे का दिख रहा है और ये पीछे का आपको दिखाई दे रहा है. So right crus is a bigger one. It is a broader one and it arises from the upper 3 lumbar vertebra, while the left crus, it arises from the upper 2 lumbar vertebra. So this completes the origin of the diaphragm and the insertion. Insertion is in the central part. Now in this diagram is taken from the Gray's anatomy, and here you can see in the central tendon there is a very big opening. There is a very big opening.
and this is the opening of the IVC, inferior vena cava opening. यहीं पर एक और नर्व आती है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी. That will be the right phrenic nerve, right phrenic nerve. Okay, so esophageal opening is in the aponeurotic part. This is in the aponeurotic part में है. देखो muscular part में नहीं है. It is in the aponeurotic part and it is the biggest opening. ये तीन opening है, first, second and third. So IVC का opening जो है ये biggest है. Esophageal opening. Esophageal opening, one thing ये आपको दिख रहा है कि ये muscles में है. So it is in the muscular part. And aorta का opening कहाँ है? It is behind the median arcuate ligament. What is this median arcuate ligament? देखिए, right crus and left crus. Right crus की medial margin, left crus की medial margin. Both of them are united together and they are forming another ligament which is known as median. बीच में है ना, so this is known as median arcuate ligament. So this median arcuate ligament is in the just in front of this aortic opening. This white जो आपको दिख रहा है, this is the median arcuate ligament. So right crus and left crus. Right crus is a thicker one. It goes upward and it encloses this opening, that is esophageal opening. So esophageal opening is basically in the right crus के अंदर ही आपको दिखाई देती है, muscular part में. Okay, left crus it never encloses the esophagus. ये अभी मैं बताऊंगी क्यों इसका importance है. Okay, so right crus it enlarges and it encloses this opening, that is the esophageal opening. And aorta के आगे क्या हो रहा है? ये जो right और left crus हैं, वो दोनों आगे ऐसे aorta के आगे it is forming another ligament which is known as median arcuate ligament. तो कितने arcuate ligament हो गए? One is the median arcuate, another is the medial arcuate, and the third one is the lateral arcuate ligament. There are 3 arcuate ligaments. बीच में median, दोनों तरफ 2 मीडियल और 2 लेटरल. मीडियल कहाँ है? सॉस मेजर के ऊपर का फेशिया है, टेंडिनस आर्च है, और लेटरल जो है ये क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर का है. नाउ यू कैन सी insertion. The insertion is in the central tendon and it is trilobar in shape and 3 leaflets. And what are the major opening? Aortic opening, esophageal and vena cava. देखो, aortic opening is osseo-aponeurotic. Why osseo? क्योंकि इसके पीछे क्या है? लब्बर वर्टिब्रा है, so osseo. और आगे क्या है? median arcuate ligament, so aponeurotic. Esophageal, as you have already seen, this is totally muscular. And the vena cava is totally aponeurotic. Here you can see again, esophageal is totally muscular, vena cava is totally aponeurotic, and aortic में क्या है? इसके पीछे क्या है? Vertebra. और आगे क्या है? Median arcuate ligament. So this opening is osseo-aponeurotic. पीछे bone, आगे aponeurosis. Median arcuate ligament. Okay? So this is osseo-aponeurotic. So 3 opening. This is totally aponeurotic, this is muscular, and this is osseo-aponeurotic. Now you can see, ये sagittal section लिया हुआ है. This is the sternum, lateral view है sternum का. ये diaphragm, ये dasyphoid process के back से निकलता है, flushing slips. So this is the diaphragm. You can see, this is first opening, IVC, opening, inferior vena cava का. This is second opening. This is esophageal. And this is the third one. This is basically, देखो, पीछे vertebra आया और आगे median arcuate ligament. Okay? From this diagram, you can see these 3 openings are at different levels. एक ही level पे नहीं है. सबसे ऊपर IVC का है, उसके नीचे esophagus, उसके नीचे aorta. Here the label is, you can see the label here. देखिए, IVC opening is at the level of 8th thoracic vertebra.
Esophageal कहाँ है? At the level of 10th thoracic vertebra, and aortic opening is at the level of the 12th thoracic vertebra. So all the openings are at different level. The uppermost is the IVC. That is the IVC. है ना? The middle one is the esophageal, T10 के level पर. And the lowermost will be the aortic opening. Aortic opening is basically just between the vertebra and the diaphragm. Actually देखा जाए तो diaphragm में नहीं है, diaphragm के पीछे है, median arcuate ligament के पीछे है. आगे इसके median arcuate ligament है और पीछे क्या है? T12 vertebra. From this diagram you can see the biggest opening कौन सा होगा? IVC का, फिर esophagus का, फिर aorta का. Another thing which you can see, understand from this diagram, ये diaphragm का central tendon वाला part है यहाँ तक. So IVC opening is the aponeurotic totally. ये muscular part चालू हो गया. So esophageal opening is in the muscles and aortic opening is obviously behind the median arcuate ligament and in front of the T12 vertebra. So diaphragm का देखो एक origin भी आप यहाँ देख सकते हो, that is sternal origin, xiphoid process के पीछे से निकल रहा है. Now this is a very important table which you should learn by heart. पूरा आपको याद होना चाहिए. This is very important. Okay? Very important table. What are the opening? Major opening. We are talking about the major openings of the diaphragm. Okay? So IVC, esophageal and aortic. Situation कहाँ है? Vena cava opening is at the level of the TH. It is at the level of the 8th thoracic vertebra. Junction कहाँ आता है? ये central tendon में है. Okay? Esophageal opening मैंने बोला था right crus में होता है. So splitting of right crus से बनता है. और aortic opening कहाँ है? Median arcuate ligament के पीछे. Shape अगर हम देखें, vena cava opening is a quadrilateral. Esophageal दिख ही रहा था elliptical है और aortic जो होगा वो rounded होगा. Now what are the structures passing from these opening? As the name suggests, जिसका जो नाम है उससे वो तो major structure जा ही रहा है. जैसे vena cava से IVC है, esophageal से esophagus and aortic से abdominal aorta. Other than this, vena cava opening, it also give passage to the right phrenic nerve. Right phrenic nerve. A question arises here, what about the left phrenic nerve? Left phrenic कहाँ से आती है? तो left phrenic जो होती है, जो central tendon वाला part है, वहां से just निकल के diaphragm में आ जाता है. The phrenic nerve, it supplies the diaphragm from below, नीचे से करता है. Again embryology, यहाँ पे embryology आएगा, मैं आपको बताऊंगी अभी. Okay? So right phrenic का opening भी vena cava के opening में से ही है. Esophageal opening, it gives passage to esophagus plus it gives passage to the जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आपकी आर्टरी होती है उसकी इसोफेजियल ब्रांचेस को देता है. इसोफेजियल ब्रांचेस को देता है. ओके? लेफ्ट गैस्ट्रिक, यहाँ नर्व लिख जाए, दिस इज बेसिकली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसकी इसोफेजियल ब्रांचेस को देता है. लेफ्ट गैस्ट्रिक. लेफ्ट गैस्ट्रिक कहाँ से निकलेगी? सीलियक जो ट्रंक है उसकी डायरेक्ट ब्रांच होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक. तो लेफ्ट गैस्ट्रिक में से इसोफेजियल ब्रांचेस निकलते हैं. This is one of the important site of porta cable anastomosis. ये लेक्चर आपका हो चुका है. पोर्टा केबल एनास्टोमोसिस में जो हमने इसोफेजियल ब्रांचेस की बात की थी वो लेफ्ट गैस्ट्रिक की ब्रांचेस थी. ओके? सो लेफ्ट गैस्ट्रिक की भी जो ब्रांचेस हैं वो इसोफेजियल ओपनिंग के थ्रू एंटर कर रहा है. अनदर इज एओर्टा. एओर्टा में से एओर्टा तो गया, प्लस वेन, एजाइगस वेन. Another is the thoracic duct. Thoracic duct क्या है? Lymphatic duct है. Another important column of this table is the effect of contraction. जब diaphragm contract करेगा तो क्या effect आएगा? देखो vena cava opening dilate होगा, ये मैंने आपको starting में बताया था. This is a very important point. The opening of the vena cava, it dilates during contraction. Okay? Contraction of diaphragm जब होगा, diaphragm goes down. आपका जो वीना कावल ओपनिंग है वो डायलेट होगा और जो भी ब्लड है आईवीसी में वो ऊपर पुश हो जाएगा. मतलब थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम को क्रॉस करके वो ऊपर थोरेक्स में गया और राइट एट्रियम में जाके वो उसको ओपन
खुल जाएगा और वहां पे वीना कावल ब्लड पहुंच जाएगा. सो वीना कावल ओपनिंग शुड बी इन द एपोन्यूरोटिक पार्ट में होना चाहिए था. अगर मस्कुलर पार्ट में होता तो ये चीज नहीं हो पाती. अब इसोफेजियल ओपनिंग, इट कॉन्स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके, तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय इसोफेजियल ओपनिंग कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है. ओके, इसका मतलब जब डायफ्राम ऊपर जाएगा, रिलैक्स होगा, तो इसोफेजियल ओपनिंग चौड़ी होगी, डायलेट होगी, और जो भी इसोफेगस में खाना है वो नीचे स्टमक में आ जाएगा. ठीक है, डायफ्राम ऊपर गया मतलब एक्सपिरेशन हुआ. मींस इसोफेगस का डायलेटेशन कब होगा? एक्सपिरेशन के जस्ट बाद में. अपन ने सांस ली और छोड़ी, जब सांस छोड़ी तो डायफ्राम ऊपर गया तो इसोफेजियल ओपनिंग डायलेट हुआ और खाना इसोफेगस से नीचे स्टमक में आ गया. ओके, सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर वन इज द एओर्टिक. एओर्टिक में कोई चेंज नहीं होगा. व्हाई? क्योंकि एओर्टिक कैसा है? ऑसियो एपोन्यूरोटिक होता है. पीछे तो बोन है, बोन में कोई फर्क नहीं आना है, और आगे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है, वहां भी नहीं आएगा. सो देयर इज नो चेंज in the aortic opening during the contraction of the diaphragm. Again, this table is very important. ये बहुत ही important table है. वीना कावा T8, esophageal T10, aortic T12. Okay? And क्या कंटेंट है? IVC का ओपनिंग में से IVC प्लस राइट फ्रेनिक है. इसोफेजियल में इसोफेजियल प्लस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. एओर्टिक में एओर्टिक, एजाइगस वेन एंड थोरेसिक डक्ट. एंड व्हाट इज द इफेक्ट? आईवीसी डायलेट होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और एओर्टा वाले में नो चेंज. ओके, अगेन यू कैन सी दिस ओपनिंग, आईवीसी ओपनिंग, एओर्टिक इसोफेजियल ओपनिंग एंड एओर्टिक ओपनिंग. देखो एओर्टा वाला वर्टिब्रा और मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के बीच में, इसलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है. डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे आ रहा है, तो ये ओपनिंग डायलेट होने वाला है, और जब डायफ्राम नीचे आ रहा है तो ये पार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, इसलिए इसोफेगस की ओपनिंग कॉन्स्ट्रिक्ट होने वाली है. ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, और ये रिलैक्स हो रहा है, इसलिए आईवीसी का ओपनिंग डायलेट होगा और इसका कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. नाउ व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज वेरी सिंपल, कोई भी बता सकते हैं. डायफ्राम के ऊपर क्या है? देखो बीच में पेरिकार्डियम आ गया, दोनों तरफ दो प्लूरा और लंग आ गए. इंफीरियरली क्या आता है? लिवर. राइट डोम जो होता है, इट इज हायर इन पोजीशन, बिकॉज ऑफ लिवर इट इज हायर इन पोजीशन. तो ये राइट डोम के नीचे है. लेफ्ट डोम के नीचे क्या आएगा? स्टमक ऑफ द फंडस एंड स्प्लेन. ओके, और दोनों तरफ किडनी और सुप्रारीनल तो है ही, और पेरिटोनियम. ठीक, so these are the relations. Now come to the nerve supply. I have already told you phrenic nerve is the loyal nerve, because this nerve is root value C3, 4 and 5, cervical 3rd, 4th and 5th. So phrenic nerve, it also carries its loyalty towards the diaphragm, and it supplies the diaphragm from the below, मतलब इंफीरियर सरफेस से सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व एंटर कैसे कर रही थी? राइट फ्रेनिक आईवीसी के ओपनिंग के थ्रू था, और लेफ्ट फ्रेनिक मैंने आपको बोला सेंट्रल टेंडन के वहां से पियर्स करके आ जाती है. सो दैट इज अ माइनर ओपनिंग, उसका कोई अलग से उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेंसोरी नर्व? सेंसोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? हिकअप्स होते हैं, है ना, हिकअप्स, हिचकी आती है, तो सेंसोरी नर्व. ओके, डायफ्राम जब इरिटेट होगा तो वो सेंसेशन लेके कौन जाने वाला है? सेंसोरी नर्व. और डायफ्राम की मोटर नर्व कौन सी है? फ्रेनिक नर्व है. डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होना है या आपका रिलैक्स होना है, तो उसके लिए फ्रेनिक नर्व है. और सेंसोरी नर्व में भी फ्रेनिक नर्व लगती है, बट फ्रेनिक नर्व इज सेंसोरी ओनली टू द सेंट्रल पार्ट. वो जो अपन ने ग्रीन कलर का देखा है ना डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम्स में आपने, दिस पार्ट के लिए सेंसोरी कौन सी है? फ्रेनिक. और ये पार्ट कहां से निकल रहे हैं? पेरिफेरी से निकल रहा है. तो इस पार्ट के लिए इसका ओरिजिन जो है वो भी अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ये पेरिफेरी से ओरिजिन लेता है. तो पेरिफेरी में कौन सी नर्व आएंगी? लोअर 6 thoracic nerve. So peripheral part sensory supply is lower 6 thoracic, क्योंकि ये लोअर 6
कोस्टल कार्टिलेजेस से इसने ओरिजिन लिया है, तो जहां से ओरिजिन लिया है वहीं की सेंसरी नर्व साथ में लाएगा। सो लोअर 6 थोरेसिक नर्व या लोअर 6 कोस्टल नर्व इसकी सेंसरी है पेरिफेरल पार्ट की, और सेंट्रल पार्ट की कौन सी है, फ्रेनिक नर्व। ओके, सो फ्रेनिक नर्व सेंसरी टू सेंट्रल पार्ट, एंड फ्रेनिक नर्व नॉट ओनली सप्लाई द डायफ्राम, इट सप्लाई, ऊपर क्या था प्लूरा, पेरिकार्डियम, उसको भी सप्लाई करेगा, और नीचे पेरिटोनियम। ओके, प्लूरा में 2 लेयर होती हैं, फाइब्रस एंड विसरल, तो ये फाइब्रस वाली को करता है और विसरल की जो बाहर की लेयर है उसको करता है, पेरिकार्डियम को करता है। और पेरिटोनियम में भी सेम होता है, बाहर का पूरा होगा और अंदर जो विसरल है उसका केवल पेराइटल पार्ट होगा। एंड अभी मैंने आपको बताया पेरिफेरल पार्ट की कौन सी होगी, लोअर 6 थोरेसिक। ओके, सो मोटर सप्लाई, टोटली मोटर सप्लाई इज फ्रेनिक। सेंसरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सेंट्रल पार्ट एंड पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट के लिए फ्रेनिक हो गई, पेरिफेरल पार्ट के लिए लोअर 6 थोरेसिक हो गई। फ्रेनिक डायफ्राम के अलावा प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम को भी सप्लाई करता है। नाउ द डेवलपमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Diaphragm is very important for first year MBBS students. Ross, embryology and applied, all the 3 are very important. Okay, so it development is from septum transversum, ये हमने पढ़ा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी में, मैंने लिया था जनरल एम्ब्रियोलॉजी में, आपको बताया है। सेकंड वन इज द प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये अभी बताती हूँ। देन लेटरल थोरेसिक वॉल से कंट्रीब्यूशन है इसका, जो पेरिफेरल पार्ट है वो निकलेगा, और बीच का एक और पार्ट पीछे का डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। आई विल शो यू द डायग्राम, डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है दैट इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम। ओके, सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये, ठीक है। इसके पीछे देखो, दिस इज द डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ द इसोफेगस, पीछे से आ रही है, एओर्टा से निकली ना, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। अभी तक दिस इज द डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। ओके, अब बीच का ही पार्ट आगे सेप्टम ट्रांसवर्सम है, इसको हम थोड़ा एनलार्ज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू एनलार्ज? दिस टू बी एनलार्ज्ड, प्लस के निशान से। सो सेंट्रल पार्ट डेवलपमेंट, सेंट्रल पार्ट का कैसे है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस से, और सेंट्रल वाले में ही थोड़ा पीछे का देखो पोस्ट्रोलैटरल, दिस इज पोस्टीरियर एज वेल एज लैटरल, इट अराइजेस फ्रॉम द प्लूरो पेरिटोनियल, यहाँ कैनाल है उसमें मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है। और पेरिफेरल पार्ट जो है ये कहां से निकल रहा है, इसको बॉडी वॉल से कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। ओके, सो इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी दिस इज सेप्टम ट्रांसवर्सम, दिस इज डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। ओके, तो सेंट्रल टेंडन यहां से डेवलप होगा, और पोस्ट्रोलैटरल, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, वर्टिब्रा बनाए सो पोस्टीरियर। सो पोस्ट्रोलैटरल में ये जो पिंक कलर है, सो दिस इज प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। इनिशियली क्या था, यहाँ कैनाल थी, लेटर ऑन क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन से कवर हो गया। तो ये जो प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल था, इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट, आगे वाला प्लूरल और नीचे वाला जो रह गया इसका दैट इज पेरिटोनियल, इसका नाम ही है प्लूरो पेरिटोनियल। सो ये कैनाल क्रेनियली क्या बना रहा है, प्लूरल कैविटी, और कॉर्डली क्या बना रहा है, पेरिटोनियल। सो दिस इज प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द थर्ड डायग्राम, देखो इसमें आप देखो सेप्टम ट्रांसवर्सम सेंट्रल पार्ट बना रहा है, इसोफेजियल ओपनिंग ये जो आपको दिखाई भी दे रही है, सो दिस इज इन द फ्रॉम द डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस से डेवलप हुआ है। पोस्ट्रोलैटरल ये जो पार्ट है पिंक कलर का, ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से हुआ है, और ये जो ब्लू कलर आपको दिखा दैट इज बॉडी वॉल से उसने कंट्रीब्यूशन ले लिया, बॉडी वॉल, जो कि ओरिजिन कहां से हुआ था, आपके कोस्टल कार्टिलेजेस से, जो अपन ने पढ़ा है कोस्टल ओरिजिन। सो दिस इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। दिस इज द फाइनल डायग्राम जो है डायफ्राम का, इसमें आप देखो दिस इज सेंट्रल टेंडन, दिस इज
और स्मॉल पार्ट पेरिफेरल पार्ट ये प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बना। ये जो ईसोफेगस और एओर्टा वाला आपको दिख रहा है दैट इज क्रूरा ऑफ डायफ्राम से, और ये जो मेन पेरिफेरल पार्ट है ये मीजोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल। एक टेबल है उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस इज द टेबल। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या है और एडल्ट डेरिवेटिव क्या है। एम्ब्रियोनिक में सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या बना रहा है, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम बना रहा है। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन इसने क्या बनाया, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम, स्मॉल पेरिफेरल। जो डोर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस है इट फॉर्म्स द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। क्रूरा मतलब राइट और लेफ्ट क्रस्ट, जो कि अपर 3 थोरेसिक से निकला है, लंबर से निकला है राइट क्रस्ट, और लेफ्ट क्रस्ट जो है वो इसी में एक पर्टिकुलर चीज को और बड़ा करना है। इज इट पॉसिबल? नहीं हो पाएगा। डायग्राम जो दिख रहा है वो और बड़ा हो सकता है? नहीं, ये नहीं। आप इधर आ जाओ। इन दिस डायग्राम कैन वी एनलार्ज दिस डायग्राम? इट इज पॉसिबल। So this is the dorsal mesentery of esophagus। ये क्रूरा बनाती है राइट और लेफ्ट क्रस्ट। और बॉडी वॉल से मैंने आपको बोला पेरिफेरल पार्ट जो आता है दैट इज लार्ज पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। पेरिफेरल कौन सा था, जो कोस्टल ओरिजन पढ़ा अपन ने, स्टर्नल ओरिजन पढ़ा, मतलब ओरिजन वाला जितना पार्ट था ये पूरा का पूरा देखा जाए तो इंसर्शन वाला पार्ट है और ये ओरिजन वाला पार्ट है। सो लार्ज पेरिफेरल पार्ट which is external and it arises from the pleuroperitoneal membrane. Okay, now this is applied anatomy plus it is also showing a little bit of gross। पहले हम gross देख लेते हैं। ये देखो दिस इज posterior part, ये thoracic आपकी वर्टिब्रा चल रहा है, thoracic lumbar। तो एओर्टा जो है ये वर्टिब्रा के आगे पड़ा है। so posterior most is aorta, फिर आया इसोफेगस, ये एओर्टा है, ये इसोफेगस है, एंड दिस इज आईबीसी। ओके, नाउ यू कैन सी ये डायफ्राम का पेरिफेरल पार्ट है ना, जो कि बॉडी वॉल से कंट्रीब्यूशन लिया है मीजोडर्म से। अब इस वाले पार्ट में प्लूरोपेरिटोनियल पार्ट में पोस्टीरियरली पोस्ट्रोलेटरल पार्ट में एक डिफेक्ट अगर रह जाए इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ बॉगडालेक। ओके, और ये बीच में आपका पेरिकार्डियल सैक है, ये अभी बताती हूँ मैं आपको। ओके, तो ये डोर्सल मेसेंट्री वाला पार्ट है इसोफेगस का, ये आपका प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो बॉडी वॉल से जो निकल रहा है वो वाला पार्ट है। ओके, सो डायफ्राम नर्व सप्लाई हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के डायग्राम्स। देन come to the action of the diaphragm। As I have already told you, diaphragm is the principal muscle of the inspiration। देखो, in the respiration, inspiration is an active process, उसमें आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन चाहिए क्वाइट रेस्पिरेशन में, बट एक्सपिरेशन इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अब डायफ्राम का एक्सकर्शन कितना होने वाला है, मतलब वो कितना ऊपर और नीचे जाता है क्वाइट रेस्पिरेशन में। सो इन द क्वाइट ब्रीदिंग it goes 1.5 centimeter down during quiet respiration। the diaphragm it goes down during inspiration। तो आपका जो लंग का कैपेसिटी है, थोरेसिक जो कैविटी है उसका वर्टिकल डायमीटर बढ़ता है, डायफ्राम गोज डाउन, सो वर्टिकल डायमीटर बढ़ता है। ठीक है, तो क्वाइट रेस्पिरेशन में वो कितना नीचे जा रहा है, 1.5 जा रहा है सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपने डीप इंस्पिरेशन किया, जोर से सांस लिया, देन कितना नीचे और जा सकता है, 6 से 10। इट विल गो मोर अप टू 6 to 10 सेंटीमीटर इट गोज डाउन। ठीक है, सो क्वाइट रेस्पिरेशन में डायफ्राम कितना जाता है नीचे, 1.5 सेंटीमीटर। बट जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, डीप इंस्पिरेशन करते हो, तो इट में गो डाउन अप टू 6 to 10 सेंटीमीटर। देन इन ऑल द एक्सपल्सिव एक्ट, एक्सपल्सिव मतलब स्नीजिंग, कफिंग, मिक्चुरेशन, डिफिकेशन, पैर्चुरेशन, जितने भी एक्सपल्सिव एक्ट हैं उसमें वो एडिशनल पावर और देता है। द राइट क्रस, ये अपन देख चुके हैं, राइट क्रस का स्फिंक्टरिक एक्शन होता है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। एज आई हैव टोल्ड यू,
कि इसोफेजियल जो ओपनिंग होता है, जब डायफ्राम डाउन जा रहा है तो इसोफेजियल ओपनिंग कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ओके। और जब डायफ्राम रिलैक्स होने वाला है तब ये इसोफेजियल ओपनिंग डायलेट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ द डायफ्राम। सो मेन एक्शन, दिस इज द मेन मसल ऑफ द इंस्पिरेशन का मेन मसल है। मतलब अगर डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा तो इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज ऑफ डायफ्राम द वर्टिकल हाइट ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। वर्टिकल हाइट बढ़ती है, डायफ्राम नीचे जाएगा तो वर्टिकल हाइट बढ़ेगी ऑब्वियसली। स्टर्नम आगे जाएगा तो एंट्रोपोस्टीरियर जो हाइट है वो बढ़ने वाली है। देखिए सजाइटल में मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टर्नम आगे गया, थोरेसिक कैविटी वर्टिब्रा पीछे थे, तो स्टर्नम आगे गया तो कौन सी डायमीटर बढ़ा, एंट्रोपोस्टीरियर। और जो लोअर रिब्स होते हैं ना वो ऐसे ऊपर जाएंगे, तो लोअर रिब्स के ऐसे जाने से कौन सा डायमीटर बढ़ने वाला है, ट्रांसवर्स डायमीटर। सो थोरेसिक कैविटी में 3 डायमीटर है। एक ये वर्टिब्रा है, ये हाथ मेरा वर्टिब्रा को दिखा रहा है, और ये वाला जो है मेरा हाथ स्टर्नम को। तो स्टर्नम आगे जाएगा तो कौन सा डायमीटर बढ़ा, एंट्रोपोस्टीरियर, ठीक है। डायफ्राम नीचे गया तो कौन सा बढ़ा, वर्टिकल, ये वर्टिकल हुआ। और रिब्स जब ऐसे होते हैं तो कौन सा नीचे है, इफ इट इज बिलो नीचे है, नीचे है। और जब ऊपर गए तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है। तो डायफ्राम जो है ये कौन सा डायमीटर बढ़ाता है, वर्टिकल डायमीटर। डायमीटर बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर साइज बढ़ेगा, तो इंस्पिरेशन होगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा, सब पैसिव है, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे और हवा बाहर चली जाएगी, ओके। सो दिस इज, डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर डायफ्राम पैरालाइज हो गया तो इंस्पिरेशन उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्लिनिकल पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल। हिकअप, हिकअप मैंने आपको बताया था, डायफ्राम की सेंसोरी नर्व सेंट्रल पार्ट में कौन सा है, फ्रेनिक। पेरिफेरल पार्ट में कौन सी अपन ने पढ़ी, लोअर इंटरकॉस्टल, जहां जहां से ओरिजिन लिया वो ले आया, ओके। तो अगर सेंसोरी नर्व इरिटेट हो रही है तो हिकअप्स आने लग जाते हैं, हिकअप्स आते हैं, ठीक है, हिकअप्स, ओके। अब हम बोलते हैं पानी पीने से हिकअप आना बंद हो गए, क्यों, वेरी सिंपल। डायफ्राम की हमने रिलेशन में पढ़ा है, फंडस ऑफ स्टमक। पानी पियोगे, स्टमक में पानी जाएगा, तो डायफ्राम का जो इरिटेशन है वो कम हो गया, तो हिकअप आना बंद हो जाएंगे, ओके। सो हिकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द क्लिनिकल पार्ट, है ना। डायफ्राम के इरिटेशन से हिकअप्स आते हैं। दूसरा आया शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन होता है, देखो शोल्डर में हमने कौन सी नर्व पढ़ी थी, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। रूट वैल्यू क्या था, C3 एंड 4। फ्रेनिक नर्व का रूट वैल्यू क्या पढ़ा हमने, C3, 4 एंड 5, ओके, सेम रूट वैल्यू है। तो डायफ्राम के कारण रिफर्ड पेन जो होगा वो शोल्डर के टिप पर होगा, इट इज ऑन द टिप ऑफ द शोल्डर, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ का भी नर्व का रूट वैल्यू वही है, C3 एंड 4, यहाँ सुप्रा क्लेविकुलर नर्व आती है, ठीक है। अब अगर डायफ्राम का यूनिलैटरल पैरालिसिस हो गया, यूनिलैटरल मतलब ये 2 डोम है, राइट डोम या लेफ्ट डोम, किसी एक का हुआ, ठीक है। जिसका होगा उसका क्या हो जाएगा, वहां का इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम भी बोलते हैं, ओके। यूनिलैटरल पैरालिसिस होगा तो एक साइड का डायफ्राम तो ठीक काम कर रहा है, दूसरी जो हाफ है उसका, राइट या लेफ्ट में से जो भी पैरालाइज हुआ वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में जो इसे नीचे जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम भी हो सकता है इफ देयर इज दैट साइड फ्रेनिक नर्व इज कट और डैमेज। इवेंट्रेशन, इवेंट्रेशन मतलब द डायफ्राम, ये भी आपका यूनिलैटरल होता है नॉर्मली, ओके। सो दैट साइड डोम विल गो अप, वहां का पैरालिसिस हो गया है, ओके। सो ये वाला जो डायफ्राम है, इवेंट्रेशन। देन डायफ्राग्मेटिक हर्निया, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक, ये अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। डायफ्राम हमने पढ़ा है 4 जगह से आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो डायफ्राम में अगर ये चारों पार्ट आपस में ठीक से नहीं मिले, यूनाइट नहीं हुए, देन इट विल लीड टू द होल इन दैट पार्ट, जहां पे यूनियन होना था वो नहीं हुआ। सो इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हर्निया। हर्निया में क्या होने वाला है, एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर जाने वाले हैं।
सो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया इज वेरी कॉमन. हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी केसेस आते हैं और हम इसको ऑपरेट करते हैं. आई हैव कंसल्टेड एसोसिएट प्रोफेसर yesterday only. We have lot of diaphragmatic hernia patient. A short note or a full question can come on the diaphragmatic hernia. Now we will see, this is one type of hernia. Before that, this is the diagram of the hernia. इसमें क्या हो रहा है? This is congenital. दो टाइप के हर्निया होंगे. एक congenital होगा, एक acquired होगा. Congenital मतलब by birth और एक्वायर्ड का मतलब है जो कि बाद में हो. ओके, यू कैन सी दिस इज डायफ्राम हियर. कैन यू सी दिस इज द डायफ्राम. अब ये क्या हुआ देखो, राइट साइड पे तो नॉर्मली नहीं है क्योंकि लीवर होता है. लेफ्ट साइड से क्या हुआ, ये स्टमक है. इंटेस्टाइन के लूप्स ऊपर चले गए हैं. यू कैन सी इंटेस्टाइनल लूप ऊपर चला गया. कौन सा साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे. सो नॉर्मली द हर्निया ऑफ द डायफ्राम इज कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड. इसका एक रीजन ये है कि राइट साइड की जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो पहले बन जाती है. राइट साइड प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल क्लोजेस अर्लियर. दो प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल है. ये डायग्राम, दिस इज अ प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल. दिस वन प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल. सो राइट साइड की प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल जो होती है इट क्लोजेज अर्ली, मतलब यहाँ फ्यूजन बराबर हो जाता है. लेफ्ट वाली लेट क्लोज होती है. तो लेफ्ट वाली अगर खुली रह जाएगी तो क्या होगा, एब्डोमेन के कंटेंट्स जो हैं वो ऊपर चले गए. यू कैन सी एब्डोमिनल कंटेंट्स आर गोइंग अप इनटू द लेफ्ट साइड प्लूरल कैविटी में चले गए. ओके, स्प्लीन भी ऊपर चला गया. हमने लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम के इंफीरियर रिलेशन में क्या पढ़ा था, spleen भी पढ़ा था. So spleen can go up, coils of intestine can go up. You can see this is also intestinal coils. Okay. अब patient कैसे present करेगा? If this much of abdominal content will go up, ऊपर जाएंगे तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड का जो लंग है वो आपका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा. तो पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी. और ये कंजेनाइटल है तो ये तो मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी. दिस इज द सर्जिकल इमरजेंसी. वी हैव टू इमीडिएटली ऑपरेट दिस साइड ऑफ डायफ्राम को हमें ऑपरेट करना पड़ेगा. ओके, सो पेशेंट विल बी प्रेजेंटेड टू यू. द न्यूबॉर्न इज नॉट एबल टू टेक द रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉट एबल टू डू द नॉर्मल ब्रीदिंग. यहाँ अगर आप स्टेथोस्कोप लगाते हो चेस्ट में तो आपको नॉर्मल रेस्पिरेशन की बजाय क्या है, ये इंटेस्टाइनल कॉइल्स के जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस है उसके मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है. द हार्ट हैज ऑल्सो शिफ्टेड लिटिल बिट ऑन द राइट साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया. तो यहाँ लिखा है एपरेंट डेक्स्ट्रोकार्डिया. अगर ये कॉइल को हम जब नीचे ले लेंगे, यहाँ ऊपर से नीचे ले लेंगे तो हार्ट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. सो दिस इज नोन एज एपरेंट. हमें लग रहा है डेक्स्ट्रोकार्डिया है, बट दिस डेक्स्ट्रोकार्डिया इज बिकॉज ऑफ दीज coils of intestine which has go up, ऊपर चले गए हैं. ओके, स्टमक जो है वो भी हर्निएट करके थोरेसिक कैविटी में चला गया. तो क्या क्या ऊपर जा सकता है, स्टमक जा सकता है, स्प्लीन जा सकती है, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टीन जा सकता है. उसके कारण ये साइड का लंग देखो कंप्रेस हो गया. दिस इज द कंप्रेस्ड लंग. सो दिस इज वन ऑफ द डायग्राम विच इज शोइंग द पिक्चर ऑफ द कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया. नाउ व्हाट आर द अदर हर्निया, और कहां कहां हो सकते हैं. ये देखिए आगे जहां वो जीफॉइड प्रोसेस से ओरिजिन लेता था, मैंने आपको बोला था जीफॉइड प्रोसेस से दो फ्लैशी स्लिप्स से लेता है. इसके भी पहले का डायग्राम, इफ यू विल सी दिस डायग्राम, इट अराइजेस फ्रॉम दिस जीफॉइड प्रोसेस बैक. यहाँ दो फ्लैशी स्लिप से ले रहा है. एक स्लिप राइट साइड से निकल रही है, एक लेफ्ट साइड से निकल रही है. तो यहाँ पे अगर दो फ्लैशी स्लिप में कोई एक फ्लैशी स्लिप जो है उसका बराबर परफेक्ट यूनियन नहीं हुआ, सो ये जो हर्निया होता है इस स्पेस को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी, लैरी स्पेस, फोरामेन मॉर्गेग्नी. तो ये कौन सा हर्निया है, दिस इज अगेन अ डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, लेकिन ये आगे की तरफ है. ओके, अभी जो हमने दूसरा हर्निया देखा था वो हमने पीछे से देखा था, पोस्ट्रोलैटरल पार्ट से हो रहा था. ओके, तो आगे स्टर्नल जो पार्ट है ओरिजिन, वहां पे इफ दीज टू फ्लैशी स्लिप्स failure to fuse, failure to unite, it will lead to the hernia through the
foramen of Morgagni या space of Larry, and it is more common on the right side. Normally हम सब left पे पढ़ने वाले हैं, but that is the only which is common on the right side पे ये common है. Okay? So from the embryology you can see कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है. देखो इसमें चारों पार्ट यूनाइट हो गए हैं. अब इसमें यूनाइट नहीं हुए हैं तो एक ये प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल से गया तो ये है फोरामेन ऑफ बॉगडालेक जो अभी अपने डायग्राम देखा, फोरामेन ऑफ बॉगडालेक. सो हर्निया थ्रू द डिफेक्ट इन द पोस्ट्रोलैटरल पार्ट में है, posterolateral, and it is more common on the left side. Why? I have already told you this right side canal fuses early and it fuses late. So abdominal contents are going up, left side में ये ऊपर चला गया. ओके, तो यहाँ पे डिफेक्ट, ठीक है. So this is foramen of Bogdalek, left side defect in the posterolateral part. Okay. Now how we will करेक्ट सर्जिकली करेक्ट. इफ इट इज एक्वायर्ड, अगर एक्वायर्ड हर्निया होगा तो क्या होगा, आपको आपने अगर ऑस्कल्टेशन किया तो हार्ट साउंड की जगह आपको क्या सुनाई पड़ने वाला है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल कॉइल्स के साउंड सुनाई पड़ेंगे. यू कैन सी द इंटेस्टाइनल साउंड्स, है ना. नॉर्मली क्या होना चाहिए था, प्लूरा में, यहाँ अगर आप सुन रहे हो प्लूरा में तो आपको क्या सुनाई पड़ना चाहिए, रेस्पिरेशन. लेकिन अगर इस तरफ का ऊपर चला गया है तो ऑब्वियसली यू विल सी द गर्गलिंग साउंड, इंटेस्टाइनल कॉइल्स. एक्वायर्ड हर्निया. एक्वायर्ड हर्निया कौन सा होगा, जो एडल्ट में होगा. बच्चों में जो है दैट इज कंजेनाइटल एंड इट इज ऑब्वियसली अ सर्जिकल इमरजेंसी. यू हैव टू सर्जिकली इसको करेक्ट करना है, इंटेस्टाइनल कॉइल्स को नीचे लाना है. अदरवाइज इंटेस्टाइन में भी इंटरसेप्शन हो सकता है, घूम सकता है, रोटेशन हो सकता है, वल्वुलस हो सकता है. ओके, तो हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे. अब यहाँ हमने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, थोरेसिक वॉल में कौन सी मसल पड़ी है, latissimus dorsi. So that latissimus dorsi muscular flaps, यहाँ पीछे था, यहाँ से उठा के हमने muscular flap से इस स्पेस को क्लोज कर दिया. So latissimus dorsi muscle fleshy flaps are used surgically to correct this defect in the foramen of Bogdalek. This I have confirmed. ये कल ही मैंने पूछा अपने न्यू सिविल हॉस्पिटल में, ये सब ऑपरेशंस होते हैं. लेटिसिमस डॉर्साई को यहाँ पे हमने फ्लैशी फ्लैप्स लेके इस फोरामेन ऑफ बॉगडालेक को क्लोज किया हुआ है. ओके, सो दैट इज द सर्जिकल इंटरवेंशन. तो एक चीज आप क्या कर सकते हो, लेटिसिमस डॉर्साई के फ्लैशी फ्लैप पीछे आप लेके और उस स्पेस को क्लोज कर दो. सेकंड ऑप्शन क्या है, वहां कोई मैश रख दो, कोई प्रोस्थेटिक मैश रख दो. ओके, अनदर थिंग, इसके अंदर जब हम करेक्ट करते हैं तो उसमें आगे अप्रोच कहां से करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्रोच थ्रू द एब्डोमेन. सारे पार्ट कहां गए हैं, ऊपर प्लूरल कैविटी में गए हैं. दिस डायग्राम. ओके, तो हम खोलेंगे कहां से, यहाँ एब्डोमेन से खोलेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे ये सारे पार्ट्स वी विल ड्रैग डाउन ऑल दिस इंटेस्टाइनल कॉइल्स. धीरे से इस स्प्लीन को नीचे लाएंगे, इंटेस्टाइनल कॉइल्स को नीचे लाएंगे. तो ये जो हार्ट आपका राइट साइड थोड़ा गया है वो वापस अपनी जगह पे आएगा, लंग भी रिलैक्स होगा और ये जो डिफेक्ट है दिस विल बी सर्जिकली करेक्टेड, sutured by the fleshy flaps of the latissimus dorsi. Or if the defect is a bigger one, we can use a mesh. So this is the diaphragmatic hernia surgical correction. Now this is another diagram. देखो this is diaphragm, ये stomach है. This is congenital, this is acquired. Congenital में क्या हो रहा है, ये जो lesser curvature of stomach, यहाँ पे esophagus और stomach का junction है, तो ये stomach ऊपर चला गया. So this is known as rolling type of hernia. ये बच्चों में होता है congenital rolling hernia. और ये acquired है. इसमें क्या हुआ, आपका जो junction है वो पूरा का पूरा ही ऊपर चला गया. stomach का जो लेसर कर्वेचर है वो वहां से ऊपर चला गया. यहाँ पे लेसर कर्वेचर के बाद ये जो फंडस वाला पार्ट है ये ऊपर गया. सो दिस इज नोन एज स्लाइडिंग हर्निया, ये पूरा ऊपर चला गया. सो दिस इज नोन एज एक्वायर्ड एंड इट इज एक्वायर्ड. सो दिस इज एक्वायर्ड स्लाइडिंग हर्निया, दिस इज कंजेनाइटल रोलिंग हर्निया. ओके, सो दिस इज अगेन, इसमें स्टमक ऊपर जा रहा है. यहाँ ओजी जंक्शन मेंटेन रहा, यहाँ पे ओजी जंक्शन पूरा ऊपर चला गया. इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन. ओके, सो ये रोल होके ऊपर गया और ये स्लाइड होके ऊपर गया. यहाँ पे जो हाइटस है वो आपका चौड़ा है, हाइटल हर्निया. ओके,
this is the summary of the diaphragmatic hernia. Again ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. कंजेनाइटल में कहाँ होता है? स्टर्नम के पीछे, जो मैंने आपको बताया, फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी. पोस्ट्रोलैटरल मतलब फोरामेन ऑफ बॉगडालेग से जो हुआ. पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल मेजेंट्री के वहां से हुआ. और कभी कभी सेंट्रल भी होता है, इट इज रेयर. एक्वायर्ड में क्या हुआ? अगर किसी ने चाकू मार दिया तो ट्रोमेटिक. या हाइटल. हाइटल के भी मैंने आपको पिक्चर दिखाया. कंजेनाइटल हाइटल रोलिंग एंड कंजेनाइटल एक्वायर्ड हाइटल स्लाइडिंग. सो कॉमनेस्ट कौन सा होता है? एक्वायर्ड हाइटल स्लाइडिंग हर्निया. Acquired hiatal sliding hernia. All these pictures majority are taken from the Gray's Anatomy. I am very much thankful to Gray, Vishram Singh and B.D. Chaurasia. वहां से ये diagram लिए हैं. Okay. Now you can write down some of the important difference. मैं आपको एक बार just narrate कर देती हूँ. अगर congenital diaphragmatic hernia होता है तो उसमें क्या होगा? दोनों ही hernia eventration हो या कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया हो. इवेंट्रेशन में भी डायफ्राम इज गोइंग अप, सो बोथ आर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड. सीडीएच मतलब कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया. कंजेनाइटल है मतलब मैनिफेस्ट अर्ली हुआ है, और इवेंट्रेशन जो होता है वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है. यूजुअली रूटीन स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट जाते हैं, उसमें पता चलता है. अगर कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक है तो उसमें क्या है? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा. इवेंट्रेशन तो एक्वायर्ड है, so it is usually not associated with the hypoplasia. I am talking about difference between hernia and eventration. Eventration मतलब पैरालिसिस हुई है. ओके. सीडीएच में क्या है? कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक में डिफेक्ट था मेम्ब्रेन में, जबकि यहाँ पे इवेंट्रेशन में क्या है? उस पर्टिकुलर साइट पर ही डिफेक्ट आया है, नर्व सप्लाई में. कंजेनाइटल में पेशेंट न्यूबॉर्न है, और चाइल्डहुड वाले में पेशेंट जो है इवेंट्रेशन में पेशेंट यूजुअली एडल्ट होता है. इवेंट्रेशन के पेशेंट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि उसको टाइम मिल गया ना, बाय द टाइम वो अडेप्ट कर गया. लेकिन कंजेनाइटल तो सर्जिकल इमरजेंसी होता है, और उसको हमें एकदम से इमीडिएटली करेक्ट करना पड़ता है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायफ्राग्मेटिक हर्निया. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस? वन थिंग इज द एम्ब्रियोलॉजी, अनदर इज द डायफ्राग्मेटिक हर्निया, applied anatomy, and the last one is the gross anatomy of the diaphragmatic hernia. Thank you.